Zugzwang is one of the most beautiful concepts of chess, जिसके थ्रू सारे चेस के गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एंड आज एक पजल के थ्रू हम वही दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे Zugzwang can help you win games. Zugzwang actually comes from a German word Zug meaning forced and Zwang means move, right? तो एक forced move आपके ओपोनेंट के द्वारा आप करवाना चाहोगे, राइट? जिसके थ्रू आप जो चाहते हो वो हो पाए, राइट? तो यू आर लाइक क्या इसका क्या मतलब है, राइट? लाइक व्हाट डू यू मीन बाय कि मैं मेरे ओपोनेंट को क्या करवाना चाहता हूँ, राइट? तो हम ये पर्टिकुलर पजल में वही देखेंगे, राइट? बट बिफोर आई गो इनटू दिस पर्टिकुलर पजल, इन दिस पोजीशन व्हाइट इज अप अ बिशप, राइट? तो व्हाइट के पास एक बिशप है, एक पॉन है, किंग है, राइट? और ब्लैक के पास किंग और दो पॉन है, राइट? So white is materially up in this particular position, right? But you have to be very careful, right? The reason why you have to be careful is because generally ऐसे देखा जाता है कि king और bishop versus king और दो pawn या फिर एक pawn जो है, let's say if white captures this particular pawn, the black king just can come here, right? And capture this pawn back, क्योंकि आपके जो bishop है वो dark squared है। आप अगर प्रमोट भी करोगे तब भी because आपका king इधर आ रहे हैं तो ये वापस कैप्चर बैक कर सकता है, राइट? तो किंग with one pawn and king with a bishop, right? Generally, like under normal circumstances, एक draw माना जाता है, right? तो you should not technically try to go into this kind of positions until unless there are certain special circumstances. With that in mind, right? So this position is not as easy. Even after white के पास एक additional piece है, this position is not as easy as it seems like, right? To win. So with that in mind, I definitely would request you to pause this video for a minute or two and try to find out कि white के लिए ऐसा क्या sequence हो सकता है ये particular position में जो seemingly drawish है, right? जिसके through white ये game जीत पाए, right? Like what can be the sequence of moves, right? तो आप definitely आपके video pause करो और ये वाला puzzle solve करने की कोशिश करो। तो ये puzzle में हम Zugzwang के जो concept है उसके एक बहुत interesting implementation देखेंगे, right? So the first move that I will play as white is bishop to h6 check, right? तो इधर ये check है, you can see this bishop attacks this king here, right? तो अभी ये king को तो move करना पड़ेगा, right? तो अभी king को move करने के लिए इधर तो नहीं आ सकता, ये pawn है, right? So this square is not available, this square is also not available, और ये square में pawn है तो this square is also not available, right? तो फिर या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, ठीक है? इधर नहीं आ सकता, like actually the king should not move to this particular square. क्यों? The reason why it cannot move is तो ये pawn जो है ये pawn को मैं capture कर सकता हूँ and then I can eventually promote this particular pawn to a queen, right? तो ये king फिर ये pawn को रोक नहीं पाएगा and this is going to be winning for white. तो essentially black के पास एक ही move है बस, which is king to g8 and black plays that move king to g8, ठीक है? तो अभी as white what will I do? I do not want to exchange my pawns, right? अगर मैं pawn exchange करता हूं तो king pawn versus king bishop हो जाएगा, ठीक है? Which is in most of the situations not winning, right? So I want to keep suspense in the game, right? And see if Zugzwang can be forced anyway. तो मैं pawn to g7 push करने वाला हूं, keeping a chance alive कि कभी ये king move करेगा तो फिर मैं ये pawn को g8 में जाके win कर पाऊं। तो अभी ये particular position पे, right? हम ये देखते हैं कि black के पास क्या क्या moves है, right? या तो black अपने king को इधर लेके आ सकता है ऊपर, या फिर ब्लैक अपने पॉन्स को आगे मूव कर सकता है, राइट? नाउ सो अगर ब्लैक इधर पॉन टू e6 मूव करता है, दैट इज प्रोबेबली द ओनली वे इन विच दिस पर्टिकुलर गेम कैन बी ड्रॉन, या फिर कोई चांसेस है ड्रॉ करने का, बिकॉज इफ व्हाइट टेक्स दिस एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पॉन, राइट? सो दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज अ स्टेलमेट बिकॉज ब्लैक के पास कोई लीगल मूव्स नहीं है एंड ब्लैक के किंग कोई चेक में नहीं है एट दिस मोमेंट, राइट? तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये पॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये बिशप है h6, राइट? तो दिस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, ठीक है? ब्लैक का किंग यहां मूव नहीं कर सकता बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉन इज कंट्रोलिंग दिस स्क्वायर, यहां मूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस किंग एंड यहां मूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस पॉन, राइट? तो कोई लीगल मूव बचा नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेलमेट। तो आप फिर बोलोगे सर ठीक है, मतलब ब्लैक व्हाइट कैन ऑब्वियसली नॉट कैप्चर दिस पर्टिकुलर पॉन, व्हाइट कैन सिंपली मूव द किंग अप और व्हाइट कैन मूव द किंग हियर, राइट? उसमें क्या होगा कि ब्लैक का किंग f7 में आ सकता है, राइट? टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर पॉन। अभी अगर आप g8 क्वीन करने का कोशिश करोगे, ठीक है? तो लेट्स से इफ यू ट्राई टू क्वीन नाउ, तो अभी किंग टेक्स g8,
किंग टेक्स e6 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेलमेट वंस अगेन, क्योंकि अभी भी आप अगर आप चेक करते हो तो ब्लैक के किंग के पास कोई लीगल, ब्लैक के किंग के पास वैसे एक मूव अवेलेबल है, राइट, किंग टू h8, ठीक है, बट आप इधर चेकमेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज यू कैन मूव द किंग हियर, ठीक है। अगर आप मूव करने की कोशिश करोगे तो देयर इज नो लाइक लीगल मूव अवेलेबल वंस अगेन, दिस कैन बी अ स्टेलमेट और अ स्टेलमेट लाइक सिचुएशन, राइट। तो e7 में पॉन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर व्हाइट टू विन दिस पर्टिकुलर गेम। सो इफ ब्लैक मूव्स दिस पॉन फॉरवर्ड, ठीक है, so there is a chance कि ब्लैक कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर गेम। बट आज ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ a beautiful thing happens if black plays king to f7 which is actually a blunder, right? तो ये ब्लंडर क्यों है, राइट? तो आप डेफिनेटली ये पूछ सकते हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली इज द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, इज द पॉइंट ऑफ अ zugzwang, राइट? ये पर्टिकुलर पोजीशन पे व्हाइट इज गोइंग टू सैक्रिफाइस द पॉन, व्हाइट इधर प्रमोट करेगा, ठीक है, एंड आप बोलोगे कि सर आप अभी बताए, ठीक है, कि किंग बिशप वर्सेस एक पर्टिकुलर पॉन, किंग वर्सेस किंग और एक पर्टिकुलर पॉन, ये ड्रॉइश है, ठीक है। तो फिर तो लाइक आई कैन अर्ज्यूम कि आफ्टर किंग टेक्स g8, ठीक है, किंग और उसके पास दो पॉन और मेरा किंग और बिशप, ठीक है, ये है, ये तो लाइक प्रोबेबली लूजिंग है, ठीक है। अगर लूजिंग भी ना हो तब भी लाइक मतलब ये डेफिनेटली ड्रॉइश है, ठीक है। तो फिर इससे हम जीत कैसे सकते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन इंटीग्रिटीज इन चेस, देयर आर सर्टेन ब्यूटीफुल पोजीशंस इन चेस, ठीक है, जो लाइक ऑफन लेकिन इन द बोर्ड अराइज करते हैं, ठीक है, which makes us wonder that what are like the infinite possibilities within this particular game, and आज हम वही देखने वाले हैं ये particular वीडियो पे। ये पोजीशन पे white plays king to e6, ठीक है, and suddenly आप देखोगे कि black के king के पास h8 जाने के बगैर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। black king cannot move to f8 because of this particular bishop, f7 नहीं मूव कर सकते क्योंकि king अभी आगे आ चुका है, ठीक है, एंड g7 नहीं मूव कर सकते बिकॉज ये बिशप वापस से डायगोनल कंट्रोल कर रहे हैं, सो द ओनली पॉसिबल मूव इज किंग टू h8, एंड नाउ वी स्टार्ट रियलाइजिंग ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर पॉन ऑन e7, ठीक है। क्यों? अगर उसी टाइम पे किंग f7 मूव जब कर रहा था ब्लैक, उसी टाइम पे e6 या e5 वुड हैव बीन अ सेफर मूव टू प्ले, राइट? तो उसमें zugzwang नहीं होता। क्यों नहीं होता? वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रॉम व्हाइट्स नेक्स्ट मूव व्हिच इज किंग टू f7, राइट? अभी अगर ये पॉन नहीं होता ऑन द बोर्ड देन इट वुड हैव बीन अ ड्रॉ, व्हाई? तब ये स्टेलमेट होता, राइट? ब्लैक के पास कोई लीगल मूव नहीं रहता, बट नाउ वी हैव पुश्ड ब्लैक इनटू अ zugzwang, राइट? जहां पे ब्लैक को एक मूव करना ही पड़ेगा बट ब्लैक के पास स्टेलमेटिंग ऑप्शंस नहीं है, राइट? ब्लैक को अभी ये पॉन या तो e6 या फिर e5 खेलना ही पड़ेगा, which would allow us to complete our plan and play bishop to g7, and this is a checkmate। ये इसीलिए checkmate है क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ पे जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लैक के किंग के पास यहाँ पे भी जाने का कोई ऑप्शन नहीं, राइट? फॉर द रीजंस इट वुड हैव बीन अ स्टेलमेट बिफोर, इट इज अ checkmate नाउ, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ये ई पॉन मूव कर सकता था। अगर ये ई पॉन नहीं रहता तो फिर ये एक ड्रॉ होता, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई, राइट, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड कॉशियस इन दिस काइंड ऑफ एंड गेम्स जो सीमिंगली ड्रॉ होता है, बिकॉज देयर कैन बी अनफॉर्चुनेट निटिग्रिटीज जहां पे आप ऐसे ब्लैक की तरह, ब्लैक के साथ जैसे हुआ ये पर्टिकुलर गेम पे, आपके साथ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये वीडियो से आप ये zugzwang के कॉन्सेप्ट को सीखो, ट्राई करो कि आपके साथ zugzwang ना हो, रादर आप ओपोनेंट को लाइक zugzwang में फंसा सको, so that you can deliver checkmates like this। I hope you could benefit from this particular video, and I hope you like this particular video। So thank you so much for watching, and I will come up with more such beautiful concepts of chess जहां से आपके नॉलेज जो है चेस की वो काफी एनहांस होने वाला है। Thank you so much।